ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 24 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਨਵਰਾਤੇ, ਕੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧ, ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਿਵਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਰਾਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ 100 ਚੋਂ 95% ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਾਈਟੈਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ, ਆਹ ਰਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ। ਉਪਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਹੈ ਲਾਸਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। पंजाब न्यूज चैनल से कृष्ण गर्ग जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप राजनीतिक और सामाजिक खबरें और अच्छी तरह से पेश करते हो, वहीं आप समय समय के ऊपर धार्मिक जो जानकारी है अपने दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से आप देने की कोशिश करते हो। प्रयास आपका यही है, तो फिर मैं आप दोनों का दोबारा स्वागत करता हूँ, और सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय श्री राम। जैसा आपको पता ही है कि 21 तारीख दिन एतवार को श्राद्ध की बहुत बड़ी अमावस्या, पितृ अमावस्या जिसको हम कहते हैं, श्राद्ध की अमावस्या, और पितृ विसर्जन भी इसी दिन शाम के समय होता है। तो अमावस्या जो रहेगी वो रविवार को 21 तारीख को रहेगी, और कुछ है लोगों के मन में कि 21 तारीख को ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। जिस समय श्राद्ध प्रारंभ हुए थे उस समय भी ग्रहण था, वो चंद्र ग्रहण था रात्रि के समय पूर्णमासी को। और अब जो पितृ अमावस्या, पितृ विसर्जन हो रहा है, पितरों का लास्ट दिन है श्राद्ध का, तो उस दिन भी ग्रहण के बारे में जानकारी मिल रही है। तो जो चंद्र ग्रहण था वो तो भारत के समय के अनुसार था, और यहाँ पर जो है चंद्र ग्रहण का पूरा प्रभाव था। लेकिन अब जो 21 तारीख दिन रविवार को सूर्य ग्रहण होगा, वो सूर्य ग्रहण रात्रि के समय, इसलिए सूर्य हमारे यहाँ पर अस्त हुआ होगा। तो जब सूर्य अस्त हो चुके हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पर उस सूर्य ग्रहण का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। ना हमारी माताएं बहनें गर्भवती हैं, उनको किसी प्रकार का इसमें प्रभाव है, किसी प्रकार का भ्रम रखने की जरूरत भी नहीं है। और किसी प्रकार का, कई बार कहते हैं कि अमावस्या खंडित तो नहीं है, ग्रहण लगेगा, ब्राह्मण भोजन होगा कि नहीं होगा, तो श्राद्ध कर्म होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इस ग्रहण का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा, और आप बेझिझक से जो है ब्राह्मण भोजन आप करवा सकते हैं। और जो उपवास में अमावस्या को जो श्राद्ध पाना है उसका समय क्या रहेगा? हाँ, जो वैसे देखो हमारे श्राद्ध के हिसाब से जो नियम है उसका होता है 11:30 बजे और 12:30 के आसपास जब तिथि हो उस समय ही ब्राह्मण भोजन का विधान बनता है। पर बात क्या होती है, जैसे अब की बार भी एक जो श्राद्ध था वो कम था, क्योंकि इकट्ठी होगी, तिथियाँ इकट्ठी हो गई थी, छठ और सप्तमी, लेकिन श्राद्ध पहले ही तीसरा और चौथा इकट्ठा हो गया था। तो उसका कईयों का फ़ोन मेरे पास आया, पंडित जी कैसे होगा श्राद्ध, कौन सा कब निकालें। इसमें क्या भाव है, क्योंकि जहाँ जब तक तिथि है हम उस समय तक यदि ब्राह्मण भोजन करवा रहे हैं तो हम उसी तिथि में ही ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं। अब जैसे तीसरा श्राद्ध हमारा तृतीया तिथि जो थी वो 3:30 बजे तक तृतीया तिथि,
उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हुई है और उसी दिन ही, क्योंकि अगले दिन 12:30 बजे तक चतुर्थी तिथि थी, वो कहा कि महाराज जी अब चौथ का भी ग्रहण, जो चौथ का जो श्राद्ध है आज के दिन ही लगाया तो क्या करें। मैंने कहा देखो तृतीय का श्राद्ध आप निकाल सकते हो, चतुर्थी का श्राद्ध आप अगले दिन निकाल सकते हो, क्योंकि अगले दिन 12:30 बजे तक चतुर्थी तिथि रहेगी। हमने भोजन, ब्राह्मण भोजन 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सुबह करवा लेना और तिथि उस टाइम तक हमारी कम से कम 12:30 बजे तक थी। तो हम जो ब्राह्मण भोजन का समय विशेष रूप में जो होता है वैसे 10-12 के आसपास होता है, तो बाकी अपनी सुविधा अनुसार जैसे ब्राह्मण भोजन हम करवा सकते हैं। और अकेला देखो ये ब्राह्मण भोजन नहीं हम कह सकते, जो श्राद्ध पक्ष होता है अपने पितरों को याद करने का दिन होता है, उसमें ब्राह्मण भोजन विशेष है। हम अपने पितरों के नाम का तर्पण उस दिन कर सकते हैं, उस दिन पिंडदान हम कर सकते हैं, हम उस समय पीपल की पूजा कर सकते हैं। और विशेष रूप आपको बताऊं, कई बार कहते हैं हमारे श्राद्ध नहीं किया जा सकता तो क्या करें, इतना समय नहीं है, इतनी कैपेसिटी आदि नहीं है तो क्या करें। उनके लिए बिल्कुल सीधा सा एक उपाय है, गौशाला आप जा करके गौ माता को हरा चारा खिलाएं, गौ माता को पेड़े दें, क्योंकि कहते हैं कि गऊ के अंदर, गौ माता के अंदर सब 33 कोटि देवताओं का वास है। उसी में अश्विनी कुमार हैं, उसी में हमारे पितर देवता हैं, उसी के अंदर हमारे सब देवताओं का निवास बताया गया, उसमें एकादश रुद्र है, उसमें द्वादशादित्य है। तो गाय माता की सेवा भी ये समझ लो हमारे पितरों की सेवा होगी है। तो पितृतर्पण थोड़ा यदि समय तो 1 मिनट के लिए पितृतर्पण आप, क्योंकि सर्व पितृ अमावस्या कही जाती है अमावस्या के दिन। और कईयों का फोन आता है महाराज जिस तिथि में श्राद्ध का पता नहीं हो तो क्या करें। तो तिथि का पता है तो हम श्राद्ध उसी तिथि में कर सकते हैं। मान लिया उस तिथि का हमें नहीं पता पितरों का, तो वैसे तो आजकल अंग्रेजी तारीख बता करके तिथि का पता लग जाता है, फिर भी कई बार कहते हैं हमारे इतने ना करें, अकेले अमावस्या करें। तो अमावस्या को कहते हैं सर्व पितृ अमावस्या। जो हमारे पितरों का हम श्राद्ध पहले नहीं कर सकते तो अमावस्या के दिन उन पितरों का हम श्राद्ध कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा श्राद्ध से पहले हो सके तो आप अपने घर में तर्पण साधारण तरीके से, या तो ब्राह्मण को बुलाया या तो ब्राह्मण देवता करवा सकते, नहीं तो सिंपल साधारण से तरीके से दक्षिण को मुँह करके आप बैठ जाइए, सिंपल तरीका बता। और एक हाथ में आप जो है पानी का लोटा, उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, उसके अंदर आप थोड़े से काले तिल डालिए और उसे अपने हाथ में लेकर के दक्षिण को मुँह करके बस अपना गोत्र बोलिए, अपना नाम बोलिए। घर के बुजुर्ग ये करें वैसे तो उसमें पिताजी के नाम का 3 बार तो मम पिता नाम बोल करके तस्मी सावधान में तस्मी सावधान अंगूठे के भाग से जो है अंगूठे की तरफ से पितृ तीर्थ बोलते हैं यहाँ से, तो आप वहाँ से उनका जो है तर्पण करें। उसके बाद इसी तरह से पितामह दादाजी सीधे तरीके से बोलें तो मेरे पिता में मेरे दादाजी नाम बोल लें 3 बार उनका, और इसी तरह से परदादा के नाम का, ऐसे ही माता जी, दादी जी, परदादी जी 3-3 का हम तर्पण उसमें साधारण तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें विशेष करके आपको बताऊंगा गीता जी का, श्रीमद् भागवत गीता जी का 3रा अध्याय और श्रीमद् भागवत गीता जी का 7वां अध्याय विशेष रूप में यदि आप कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है, 5 मुश्किल से लगेंगे 5 मिनट, तो आप उसमें श्रीमद् भागवत गीता जी का जो अध्याय का पाठ करोगे तो पितरों को और ज़्यादा शांति उसमें प्राप्त होती है। ब्राह्मण भोजन के साथ साथ अब ये दोनों छोटे छोटे ही काम हैं, ये हम अपने घर पर आराम से कर सकते हैं ताकि हमारे पितरों को शांति प्राप्त हो सके। नवरात्रि कब से शुरू हो रही हैं और कैसे उसका कोई विधि विधान शॉर्टकट बताएं, क्योंकि आज का ज़माना जो हाईटेक तकनीकी से बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि हरेक को व्रत करना भी मुश्किल हो रहा है और चाहता भी हरेक की श्रद्धा भावना होती है भी हम भी महामाई का ध्यान करें और महामाई सबके घरों के फुल तंदुरुस्ती और तरक्कियाँ बख्शे। हम तो कहते हैं सभी के परिवारों में सुख साधना हो और तरक्की बख्शे, उसके लिए आप क्या बताओगे शॉर्टकट भी हो और सभी का महामाई कृपा करता है। आश्विन शुक्ल पक्ष जब शुरू होता है, जैसे श्राद्ध पितृ अमावस्या हुई उससे ठीक अगले ही दिन, जैसे अब की बार 22 तारीख को 22 सितंबर दिन सोमवार को नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और उसी दिन जब आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है तो उस दिन महाराजा अग्रसेन जयंती भी होती है। तो सभी देशवासियों को महाराजा अग्रसेन जी की और नवरात्रि के सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब की बार भी पिछली बार की तरह, पिछली बार भी यदि आपको ध्यान हो तो एक श्राद्ध घट गया था, नवरात्र एक बढ़ गया था और ठीक वही तृतीया तिथि पिछली बार 2 बार थी, अब की बार भी तृतीया तिथि ठीक है 2 बार ही है। तीसरा जो हमारा नवरात्र रहेगा वो तीसरे दिन भी रहेगा बुधवार के दिन, और वीरवार के दिन भी तीसरा ही नवरात्र रहेगा। तो उसमें एक नवरात्रि बढ़ गई है, कहते हैं नवरात्रि बढ़े तो शुभ मानी जाती है, बड़ी अच्छी मानी जाती है। और ठीक यही बात अगली साल भी, और आपको बता दूं अगली साल भी एक हमारा श्राद्ध घटेगा और एक नवरात्र अगली बार बढ़ेगा। अगली बार 2 सप्तमी होंगी, सप्तमा नवरात्र 2 बार आएगा। ये 2026 आश्विन के नवरात्रों की बात करता हूँ। तो आश्विन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा जो तिथि है उस दिन से जो हमारे नवरात्रि प्रारंभ होती है, इसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। तो सर्दी की शुरुआत होती है। इसमें 2 नवरात्रि विशेष हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, और 2 गुप्त नवरात्रि बोलते हैं जिसमें माघ मास और आषाढ़ मास, उसको गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। विशेष रूप से 2 ही हैं, तो 4 नवरात्रि वैसे हो गए, 2 गुप्त नवरात्रि मान करके।
तो जो 22 तारीख दिन सोमवार से नवरात्रि प्रारंभ होगी, हो सके तो अपने घर में अखंड जोत जला सकते हैं। तो जो भी भक्तजन बहुत अच्छा है तो उसमें विशेष कोई नहीं, एक चौकी लेकर के उसके ऊपर लाल कपड़ा आप बिछा लीजिए और माता जी की दाईं तरफ, हमारी बाईं तरफ कलश की स्थापना की जाती है। अपने हाथ से बाईं तरफ, माता जी के दाईं तरफ जो है कलश की स्थापना, नीचे जौ बीज करके उसके ऊपर आप एक कलश रख लें, कलश के अंदर गंगा जल डालें, उसके अंदर शुद्ध जल डालें, उसको जो है धागा बांध दें, उसके ऊपर थोड़ी सी चुटकी भर के हल्दी, यदि साबुत हल्दी मिले तो सबसे अच्छा, नहीं तो साबुत हल्दी, साबुत सुपारी, एक सिक्का उसके अंदर, इस तरह से हम उसके अंदर हरी दुर्वा, कुसा वगैरह उसके अंदर सर्व औषधि मिलती है, नहीं तो हल्दी की चुटकी उसमें डाल करके उसके ऊपर एक प्लेट रखकर उसके ऊपर फिर चावल रखकर उसके ऊपर नारियल की स्थापना। हाँ, नारियल को कई बार कहते हैं नारियल हमारे उल्टा रखें, सीधा रखें, कैसे, नारियल का मुंह अपनी ओर कर करके हमेशा नारियल को रखना चाहिए। और घी की जोत जो जलानी अपने दाएं तरफ, माता जी के बाएं हाथ में अखंड जोत, नीचे प्लेट के अंदर चावल वगैरह रख करके या सप्त धान्य रख करके उसके ऊपर हम जो है माता जी की जोत अखंड प्रज्वलित कर सकते हैं। और इसमें विशेष रूप से माता जी के नाम का दुर्गा चालीसा है, जैसे सुबह हम माता जी की आरती ओम जय अम्बे गौरी कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो उसी दौरान माता जी के एक बीज मंत्र सब माताओं का है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, ऐसे माता जी के बीज मंत्र का जप करें। नहीं तो ओम दुर्गा ये नमः है, ओम देवी नमः, जैसे छोटे छोटे माता जी के मंत्र हैं, जितना भी हो सके माता जी की आराधना, आदि शक्ति माँ है, सबके ऊपर कृपा दृष्टि बना करके रखने वाली माँ है, तो उनकी कृपा दृष्टि बने रहे, इसलिए अपने घर में अखंड माता जी की जोत जलाइए, सुबह शाम माता जी की आरती वगैरह करिए, तो माता जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। जो व्रत रखते हैं वो लेडीज़ वगैरह, जो कोई भी जेंट्स भी रखता है, व्रत में निज़म क्या होता है, क्या क्या खाना होता है, कैसे व्रत रख सकते हैं? कोई एक आसन रखता है, कोई पूरे व्रत सभी नवरात्रि रखते हैं, कोई 7-8 का रखता है, कोई पहला रखकर फिर 7-8 को, कोई 30 का रख रहा है, मतलब 3-4 व्रत रख रहे, उसके क्या निज़म है? सबसे पहला इसका नियम यही है कि पहले दिन से लेकर के हमें जो है अष्टमी तक नवरात्रि रखनी चाहिए। और जिस दिन नवरात्रि नवरात्र है, नौवीं के दिन, उस दिन प्रातःकाल कंजका को भोजन करा करके और उसके बाद में ही हमें व्रत को खोलना चाहिए। नौवें दिन पूरे रख सकते हैं। तो कई बार शरीर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, आजकल खान पान कुछ ऐसे हो गए, शरीर की इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो उसमें बताया गया फिर ऑप्शन है उसके लिए कि 2 इकट्ठे, जैसे छठ सप्तमी को रख सकते हैं, सप्तमी अष्टमी को रख सकते हैं, नौवीं को भोजन कंजका भोजन करवाइए। तो या फिर घर के 2 मेंबर इकट्ठे ही एक ही दिन 2 मेंबर, सप्तमी के दिन जैसे हमने व्रत रख लिया, अष्टमी के दिन प्रातःकाल या नौवीं के दिन जैसे प्रातःकाल कंजका को भोजन करवाने का विधान बताया गया। कंजका का भोजन का जो बताया गया 2 साल के बाद में, और 10 साल से छोटी कन्या उसको कंजका पूजन के लिए विशेष रूप में हमारे यहाँ पर मान्य गया। और आपने जैसे बताया खान पान का, देखो मैं तो यही कहूँगा जितना हो सके तो इन 9 दिनों में भोजन कम होना चाहिए और भजन ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब हम निंदा से, चुगली से, ईर्ष्या से, द्वेष से, छल से दूर रह करके बस उन दिनों में हम भजन करें, माता जी की आराधना करें। माँ आलादी शक्ति है माता जी, क्योंकि आपको भी तो याद ही है ये सब, पहले भी कथा दौरान कई बार मैंने बताया गया। तो जिसमें भगवान रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर जो है चढ़ाई की थी, दोनों का युद्ध हुआ था, तो भगवान राम जी ने भी उस आराध्य शक्ति माता जी का 9 दिन, उनका 9 रूपों का माता जी का ध्यान करके 9 दिन उनकी आराधना की थी। 10वें दिन रावण का संहार किया था। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडे, चतुर्थम पंचम स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी से, सप्तम कालाति माँ गौरी की थी, अष्टम नवम सिद्धिदात्री, ऐसे 9 माताओं का रूप का ध्यान। तो ये माता जी के वैसे आराधना करने के दिन हैं, तो इसमें जितना भोजन कम करेंगे, भजन ज़्यादा करेंगे, तो हमें आराध्य शक्ति माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरी बात है, एक समय भोजन का विधान बताया गया। वैसे हो सके तो फलाहार करना चाहिए, नहीं तो एक समय भोजन का बताया गया, जैसे उबले के आटे उसके हम पकौड़े बनाए, नहीं तो ज़्यादातर आलू वगैरह लेकर के, दही वगैरह। आजकल एक और आपको विशेष बात होता है, तो बाहर की चीज़ों में इतनी मिलावट हो गई है, तो हमारा व्रत खंडित होने का भय रहता है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, तो जितना हो सके घर पर हम इतने आराम से वस्तु में बना सकते हैं। फूल मखाना होता है, तो उसको चावल में, उसमें दूध में डाल करके फूल मखाने की हम खीर बना सकते हैं। जैसे चावल की खीर बनती है, ऐसे फूल मखाना आप डालिए दूध के अंदर, उसमें मीठा डालिए, उसकी बहुत अच्छी सुंदर खीर बनती है। ड्राई फ्रूट बनाया जा सकता है, ड्राई फ्रूट की हम बना सकते हैं। एक नमक आ रहा है आजकल, जो बाजारों में नमक आ रहा है, एक कहते हैं ये बर्तन वाला नमक है, एक मिर्च भी आ गई, वो भी होते हैं बर्तन वाली भी, तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग भी, क्या खाएं क्या छोड़ें। क्योंकि मार्केट में चलो एक बंदा आजकल फ्रूट वगैरह है, फ्रूट वगैरह नहीं ले सकता, क्योंकि सेब की रेट भी बहुत ज़्यादा हैं,
क्योंकि हर एक डरता है, अगला कहता है भी चलो थोड़ा मोटा नमकीन वगैरह हो जाए, क्योंकि मीठा इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता ना, कई बार शुगर की प्रॉब्लम हो। कृष्ण जी बाहर से लेने का तो आप 20 आइटम ले लीजिए, सब कहेंगे कि ये व्रत वाले हैं व्रत वाले हैं, लेकिन वो एक और बात आपको बात बताऊं, वो बनाई किसने है? कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जिस जीव ने जिसने भी उसको बनाया है, हो सकता है वो कैसा उसका हो सकता है श्राप नहीं, जो व्रत रख रहा है शुगर वाला पेशेंट हो जी, पर वो मीठा इतना कितना कम का क्या खाएगा बेचारा? मीठा नहीं है उसमें। आप सेंधा नमक, मैं बता रहा हूँ, सेंधा नमक आलू में डाल करके, आलू की सब्जी बनाई जाती है, उसमें सेंधा नमक खाया जाता है उसमें। हाँ, सेंधा नमक से ऐसा तो नहीं भी व्रत टूट जाएगा? सेंधा नमक होता है व्रत के लिए ही, सेंधा नमक जो होता है वो व्रत के लिए होता है। काला नमक में फ्रेज किया गया, सेंधा नमक हम डाल करके, जैसे एकादशी का व्रत है उसमें आलू वगैरह दही नहीं, अगर काली मिर्च डाल लें तो खा सकते हैं? काली मिर्चें डाल सकते हैं या सेंधा नमक डाल के बना सकते हैं। तो बाहर की चीज़ का मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, बनाई किसने उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है, क्योंकि जिस भावना से जो जीव बना है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन का आगे। तो किसने बनाया, कैसे बनाया, नायक था नहीं था, मांसाहार किए हुआ था, श्राप किए हुआ था, तो ऐसी भावना से जो हम वही अंश हमारे अंदर आएगा, वही भावना हमारे अंदर आएगी। तो ये माता जी के आराधना करने के दिन होते हैं। जितना सात्विक हम रहेंगे, जितना सात्विक भोजन करेंगे, उतना ही हमारा सात्विक मन भी होगा, और सात्विक मन होगा तो माता जी की और आराधना में हमारा मन ज़्यादा लगेगा। तो भजन ज़्यादा करना है, भोजन कम करना है, फलाहार ले सकते हैं, दूध वगैरह ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया अपने उसकी जो है फूल मखाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। जैसे भी आजकल तो बहुत सी चीज़ें घर पर बना, आइसक्रीम घर पर बनने शुरू हो गई, कुछ भी बहुत सी चीज़ें आजकल घर पर बन सकते हैं। जितना हो सके घर पर ही बना करके घर का ही भोजन आप करें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आने का तो बाजार से बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, ले सकते हैं, खा सकते हैं। फिर यदि नहीं उनको घर पर कैपेसिटी इतना घर पर नहीं कर सकते हैं तो ਇਹ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਨਵਰਾਤਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਮਾਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਰੋਸਾ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਸ਼ਰਾਧ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਵਰਾਤਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। 24 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।